हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक नया चैप्टर क्लास 10th का, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक थोड़ा सा न्यू चैप्टर है बेटा। आप लोग ने इससे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा। इट इज़ नोन एज AP। ओके, और ये एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, और इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे। सो अगर आप लोग को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैप कर लेते हो, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम स्कोरिंग 5 to 10 मार्क्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है एग्जैक्टली? An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number of preceding terms except the first term. Okay, means whenever the terms of numbers are given, like let's say the numbers are given in the form of, let's say, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, okay, like this. Okay, so all these numbers are known as terms. Okay, all the numbers whichever there is in the AP is known as terms. Okay, so it is a form of, this is the form of AP. Okay, means 10, 20, 20, you can check it out. 20 minus 10, okay, is 10. 30 minus 20 is 10. 40 minus 30 is also 10. Means the gap between the two numbers, or you can say the two terms, is 10. Okay, so it is written, it is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Okay, means 10 plus 10 is 20, 20 plus 10 is 30, 30 plus 10 is 40. Means if we add 10 to the first term of AP, okay, first term of AP, you will get the second one. If you will add to the second, you will get the third one. Okay, and if there must be the same difference between the two terms. Okay, so this is known as AP. Okay, and the first term is 10. Okay, so this fixed number is called the common difference. Okay, means the difference, common difference is, in this AP the common difference is 10 because there is a gap of 10. Okay, in this. Okay, 10 plus 10 is 20, 20 plus 10 is 30, means there is a gap between them is 10. Okay, so there must be a common difference. Okay, remember that it can be positive, negative, or zero. The difference between them, it can be negative or as well as positive. Okay, and as well as zero. Okay, so कैसे? Let's check it out. देखिए बेटा, मैंने आप लोग को बता दिया 10, 20, 30, 40 and 50 like this. Positive मीन्स 10 में 20 प्लस कर रहे हैं, 10 में 10 प्लस कर रहे हैं तो 20, 20 में 10 प्लस कर रहे हैं तो 30, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. ओके, अगर हम इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे कि 50, 40, 30, 20, 10. ओके, सो देखिए इनमें जो डिफरेंस होगा, मीन्स 40 माइनस 50 इज इक्वल्स टू माइनस 10. 30 माइनस 40 is equals to minus 10. You have checked it out that the common difference is 10. Okay, and it is negative. Okay, minus 10 is the common difference. Okay, so this is known as negative one, and it can be 0 also, like 10 comma 10 comma 10 comma 10 comma 10. This is the AP. Okay, and all the terms in this particular AP are same. Okay, so there is a difference. Zero difference means 10 minus 10 is equals to 0. So there is a zero difference. Okay, okay, zero difference between them. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि AP किसे कहते हैं. कोई भी ऐसी टर्म्स जो कि एक सेम डिफरेंस से बढ़ रही हो उसे कहते हैं, ठीक है, AP. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कि एक लड़की है, उसकी सैलरी उसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसकी सैलरी बोली गई कि आपकी सैलरी जो है वो है 5000 रुपीज़. ठीक है, 5000 रुपीज़ पर ईयर, 5000 रुपये उसकी सैलरी है. बोला गया हर साल आपकी सैलरी 200 रुपये से बढ़ाई जाएगी. किससे रुपये से बढ़ाई जाएगी बेटा? 200 रुपये से बढ़ाई जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की सैलरी उसकी क्या हो जाएगी बेटा? 5000, है ना. सेकेंड ईयर की सैलरी मतलब उसकी हर साल किससे बढ़ाई जाएगी बेटा? 200 रुपये से. तो 5000 प्लस 200, ये हो जाएगी सेकेंड ईयर की सैलरी, यानी 5200. अब थर्ड ईयर की सैलरी क्या हो जाएगी बेटा उसकी? 5200
प्लस 200, ओके। सो उसमें क्या हो जाएगा बेटा 5400। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हर साल कितने का आ रहा है बेटा, 200 रुपये का आ रहा है, क्योंकि उसकी सैलरी हर साल कितने रुपए से बढ़ाई जा रही थी बेटा, 200 रुपये से बढ़ाई जा रही थी, ओके। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, ओके। नाउ व्हाट इज टर्म? टर्म मैंने अभी आपको बताया बेटा, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड द टर्म, ओके। जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं बेटा इनको टर्म्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है बेटा, टर्म्स बोला जाता है, ओके। नाउ फर्स्ट नंबर ऑफ एन एपी इज नोन एज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। कोई भी एपी लिखा है उसका पहला टर्म, पहला जो नंबर होगा उसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। उसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए मीन्स, स्मॉल a means we are talking about the first term, okay, of AB, okay. The difference between the term is known as common difference and it is denoted by D, okay. Means the difference between them means 40, 50, 30, 20, okay. Over here 5,000 to 5,200, 5,200 to 5,400, there is 200 difference, okay. And it 200 डिफरेंस है बेटा, और देखिए वो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, नोन एज कॉमन डिफरेंस, क्योंकि बेटा देखिए दोनों के बीच में हमेशा सिर्फ 200 का ही गैप आ रहा है, ओके। तो इसे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है और इस डिफरेंस को हम लोग डी से इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, डी। सो क्या लिखते हैं बेटा, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसे बोला जाता है स्मॉल डी। फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है बेटा, ए। प्लीज इन टर्म्स को याद कर लीजिए बेटा, क्योंकि फॉर्मूले में हम यही अप्लाई करेंगे, ओके। सो डी मतलब हमारा जो डिफरेंस होगा, ओके, कॉमन डिफरेंस होगा। ए मतलब हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, ओके। देखिए कोई भी नंबर है बेटा, अगर हमें उसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और ए पी निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए बेटा, हमारे पास दिया है ए, दिया है 5, ए क्या दिया है बेटा, 5 दिया है। अब हमें ए पी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ए पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास ए जो दिया है वो दिया है 5 और डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी हमें दिया है 2, क्या दिया है 2, ओके। अब हमें ए पी निकालना है, तो आपको पता चल गया पहली टर्म क्या होगी बेटा, वो ए होगी, ठीक है, पहली टर्म ए होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी टर्म ए यानी 5, इसकी जगह 5 लिख सकते हैं, है ना, पहली टर्म हमें पता चल गई। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, देखिए ए प्लस डी, है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसमें ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म हमें मिल जाएगी। तो देखिए इनके बीच में, सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो 5 + 2 जो हमारा दूसरी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 5 + 2 यानी 7। थर्ड टर्म क्या होगी बेटा, 7 + 2, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस 2 का ही है, तो 7 + 2 यानी 9। उसके पास 9 + 2 यानी कि 11। देखिए अब पूरी एपी हमें मिल गई है बेटा, 5, 7, 9, 11, सॉरी 11, अब फिर कर देंगे 11 + 2 13, ओके। लाइक दिस हम लोग पूरी एपी अपनी निकाल सकते हैं, ओके। सो ये हमारी एपी मिल गई हमें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, देखिए अब बार बार हम लोग को 7 + 9 7 + 2 इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं बेटा। देखिए हमारी क्या दिया हुआ है, पहली टर्म ए लिख दिया, उसके बाद सेकंड टर्म हमें निकालनी होगी। सेकंड टर्म तो डायरेक्टली कर सकती है ए + डी, ए + डी हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए अब या तो देखो सेकंड टर्म +2 कर सकते हैं बेटा, या देखिए कैसे कर सकते हैं, ए हमारा क्या है बेटा 5 प्लस देखिए 2, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं ना बेटा हम लोग, तो टर्म तो देखिए 2 × डी देखिए क्या है हमारा 2, ओके। सो थर्ड टर्म निकाल रहे थे 5 2 × 2 is 4, 5 + 4 = 9। देखिए थर्ड टर्म आ गई बेटा हमारी, ठीक है। अब देखिएगा जब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a + 3d कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, 8 + 3d, a + 3d। a क्या है 5 प्लस 3d क्या है बेटा 2 × 2, 5 + 3 2 6 = 11। देखिए हमें मिल गई बेटा फोर्थ टर्म। इसको आप देख पा रहे हैं बेटा, जब कभी भी हम टर्म्स निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से जब हम टर्म्स निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर है उसमें से हम एक माइनस करते हैं। फोर्थ टर्म अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो फोर्थ टर्म हमें निकालनी है तो उसमें 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, जो नंबर आएगा × d कर देंगे, ठीक है ना।
तो n मल्टीप्लाइड बाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी भी इसको लिख सकते हैं। नंबर में से एक माइनस, हमें जैसे कि 48th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? 48 टर्म। हमसे पूछ लिया जाए इस एपी की 48th टर्म क्या होगी? कौन सी टर्म? 48 टर्म, ठीक है, 48 टर्म। तो 48 टर्म में देखिए क्या होगा बेटा? 48 मतलब 48 है, माइनस 1 कर लेंगे, यानी 47। 48 माइनस 1 अगर हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कि ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 5 प्लस 48 माइनस 1, तो 5 प्लस 47 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना था बेटा? 2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 1 9, 94 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 99। यानी अगर हम 48th टर्म निकालेंगे, इसकी 48th टर्म निकालेंगे तो क्या होगी? 99 होगी। क्या होगी बेटा? 99 होगी। ओके, सो जो भी टर्म हमें निकालनी है बेटा उसको हम एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो टर्म मिल जाएगी। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड कि हम किसी भी एपी को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए दिया है, ठीक है, और हमारे पास क्या दिया है बेटा? डिफरेंस दिया है। क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस दिया है। ओके, नाउ ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म्स ऑफ एपी। ओके, ए एन क्या होती है बेटा? जनरल टर्म होती है। इफ देयर आर एम टर्म्स इन द एपी देन ए एम रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। ठीक है बेटा, देखिए जनरल टर्म्स ए एन के फॉर्म में आती है, ठीक है, ये नंबर हो गया बेटा, ठीक है, किस नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम कोई भी लास्ट टर्म, जैसे हमारे पास ए पी दिया है बेटा 2 4 6, ओके, 8 10 12 14, ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी बेटा हमारा ए यानी 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 का, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 का डिफरेंस चल रहा है। ओके, सो 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास लास्ट टर्म दी होगी, क्या दी होगी बेटा? लास्ट टर्म। जैसे यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म 14 है, क्या है बेटा? 14, तो इसको हम लोग ए एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ज़्यादातर आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा एल के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? एल के फॉर्म में। लास्ट टर्म हमेशा क्वेश्चन में एल के फॉर्म में दी होगी, कभी कभी ये ए एम के फॉर्म पे भी दी जाती है, तो ए एम मतलब हम लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं। ओके, अगर कोई भी एपी लिखी है बेटा, उसके आगे इस तरीके से डॉट लगे हैं लाइक दिस, तो हमें ये पता चलता है कि ये एक इनफाइनाइट एपी है। क्या है बेटा? इनफाइनाइट एपी है, इसमें हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है। एपी दैट डू नॉट हैव द लास्ट टर्म इज नोन एज इनफाइनाइट एपी। ओके, जब कभी भी आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अगर उसमें लास्ट टर्म अवेलेबल होगी तो ये डॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं होगी तो इस तरह से आखिरी में क्या लगे होंगे बेटा? डॉट्स लगे होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक इनफाइनाइट एपी है। ओके, now let's move up terms. The terms which we have to find out is known as nth term. Okay, nth term मैंने कहा जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। ओके, लाइक मैंने अभी फाइंड आउट किया था 48th टर्म फाइंड आउट की थी, तो उसे nth टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? nth टर्म। ओके, सो उसका फॉर्मूला है ए एन, मैंने अभी आपको बताया था जनरल फॉर्मूला। देखिए ए एन के फॉर्मूले में जिसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है, इजिकल्स टू ए, मैंने बताया था ए प्लस एन माइनस 1, अभी आप लोग को पहले बताया है एन माइनस 1 करते हैं, मतलब एक उसमें से माइनस कर देते हैं और डी से मल्टीप्लाई करते हैं, यही मैंने आपको बताया बेटा अभी। ओके, यही इसकी फॉर्म है। जब कभी भी हमें क्या दिया होता है बेटा? कोई भी एक जनरल फॉर्म दी होती है, ठीक है, हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी होगी, हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी होगी बेटा, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके करेंगे। ओके, जैसे कि हमारे पास फॉर एन एग्जांपल दिया है 5 की टेबल कहते हैं, ईच एंड एवरी टेबल इज एन एपी। ओके, ईच एंड एवरी टेबल इज एपी बिकॉज उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है। जैसे 5 की टेबल 5 10, ओके, 15 20 25, ओके, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एंड सो अब देखिए सो ऑन मैंने ऐसे लिख दिया, डॉट्स बना दिया, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है। ओके, अब देखिए इसमें ए क्या है बेटा? ए 5 है, मैंने क्या कहा? फर्स्ट टर्म हमेशा ए होती है, ठीक है, इनके बीच में 10 माइनस 5 5, इसका डी क्या है बेटा? 5 है, डी इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि इस एपी का, ठीक है, 99th टर्म बताइए, ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या दिया है? ए 99, ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू
अब देखिए ए क्या हो जाएगा बेटा 5, ठीक है, प्लस क्या है n 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है बेटा 5, 5 प्लस 98 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 98 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 40, 5 9 45, ओके 45 में प्लस कर लेते हैं बेटा हम लोग 4, तो हो जाएगा 49। तो इज इक्वल्स टू 5 प्लस 490, ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 495। मीन्स अगर हम 99th टर्म ढूंढ रहे हैं बेटा इस ए पी की, तो वो है 495, 495, ओके। डायरेक्टली आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 99 टर्म ढूंढी थी, इनके बीच में ए पी कितना था बेटा 5 का था, 5 की टेबल हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखिए 99 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 9 45, 5 9 45 एंड फिर 49, देखिए आ गया सेम वही चीज़, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हम जनरल, ये फॉर्मूला है हमारा जिससे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा जाते हैं हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, ओके। देयर इज एन ए पी लाइक, हम लोग कोई भी ले लेते हैं बेटा 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। अब हमसे कह रहा है बेटा कि सम ऑफ फर्स्ट 4 ए पी, ठीक है ना, फर्स्ट 4 ए पी का सम क्या होगा, ठीक है, हमें निकालना है एडिशन ऑफ फर्स्ट 4 ए पी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है बेटा जिसको हम लोग लिख सकते हैं। हमसे कितने की बात करी गई है बेटा, देखिए एस सम ऑफ कितने टर्म्स की बात करी गई, एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 ए पी का निकालनी है, इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है बेटा 4/2। अब देखिए 2 ए क्या है बेटा, मैंने क्या बताया फर्स्ट टर्म ए होती है, तो लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस एन कितना है बेटा 4 माइनस 1, डी कितना है बेटा, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 4 इज 4, ओके। ये फॉर्मूला है बेटा n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, ओके। इससे हम कोई भी टर्म्स दियो फर्स्ट 4 फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 फर्स्ट 11 फर्स्ट 22, ओके, कोई भी टर्म होगी उसका हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 2 से कट जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 3 जा 12 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 8 प्लस 12 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। मतलब अगर इनका एडिशन आएगा मतलब इनका सम क्या आ जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए 16 प्लस 4 20 एंड 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 20 40, देखिए आंसर सेम आ रहा है। अभी आप लोग को लग रहा होगा बेटा कि ये तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट इसमें ऐसा होता है जब कभी भी ये नंबर्स दिए होते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स, कितने 99 टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे बेटा आप, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 99 टर्म्स तक प्लस करना एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, तब ये हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 99 टर्म्स का भी निकाल के दिखा देता हूँ बेटा। हमसे कितने टर्म्स की बात करी गई 99, ठीक है। सो यहाँ पर 98 ले लेते हैं बेटा अभी, क्योंकि ये फिर मतलब पॉइंट में आंसर आएगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी हम लोग इवन नंबर्स में ही बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया 98/2, ठीक है। अब देखिए नंबर कितने की बात करी गई थी 98 टर्म्स की एडिशन निकालना था बेटा हमें, 98/2 प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 ए कितना है हमारा 4 प्लस एन कितना है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 98 माइनस 1, डी कितना है, डिफरेंस कितना है बेटा 4 का हमें पता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, तो 49 आ गया बेटा, प्लस अब देखिए 8 प्लस 97 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 97 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से बेटा, 7 4 जा 28, 36 37 38, कितना आ गया 388 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 8 प्लस 388। अब इसमें 8 को प्लस कर लेते हैं बेटा, तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 9 और 3 396, 49 प्लस 396, ठीक है। तो 396 में हम लोग 49 को प्लस कर लेते हैं बेटा, 396 में 49 को प्लस कर लेते हैं,
तो 15, 14 एंड 4 मीन्स 445 हमारी क्या हो जाएगी बेटा, सम हो जाएगा 98th टर्म तक, 98th टर्म तक। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई होता है जब कभी भी हमारे पास कुछ एक्सेसिव बड़ी टर्म्स दे दी जाती हैं, ठीक है ना, तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं लास्ट टर्म जो कि है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP if the last number is given, means we will apply this for particular formula if we are having the last number of an AP. Okay, let's say the number is given, or you can say AP is given, that is 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, means we are having the AP, last term of this AP is 50. Okay, now if it is said that find out the first five, okay, term, sum of first 5 term of this particular AP. Okay, so S is 5 is equals to 5 upon 2, and A is 10 plus what is the last term? Last term is 50. So S5 is equals to 5 upon 2 multiplied by 60. 6 30 is a 2 is 30, the 60 is equals to 5 multiplied by 30 is equals to 150. 150 is the last term of this AP. Okay, so you can check it out that first 5 means 1 2 3 4 5, 50 plus 90, 40 means 90, 90 plus 30 is 120, and 120 plus 30, okay, 20 plus 10 30 is 150. So you can check it out, the answer is absolutely correct. So like this particular way, when we are having the last number of the AP, okay, so we can apply this formula also. Okay, so we have done the introduction part of this particular chapter. Now we will do the exercises. Okay, please do like and subscribe my channel, okay, and share with your friends if you like it. Okay, and the complete concept I have cleared over here in this particular chapter. Please go through it. Okay, and the chapter is very easy. Have a wonderful day ahead, guys. Bye bye, take care, see you.